Greetings everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से articles are discussing today. So the first article is on the aspect of collagen system. But ये जो article है that is revolving around some personal comments coming out of Kiran Rijiju ji, that is our current Union Law Minister. So यहाँ पर उनके पर्सनल कमेंट्स में ना जाकर हम इस इशू को समझने की कोशिश करेंगे दैट इज ऑन कोलेजन सिस्टम. As well as we'll be trying to dwell more into the details, उसके historical perceptions, उसके judicial perceptions, उसके basic other perceptions, आपके polity के perspective से क्या important है, UPSC के perspective से क्या important है, in an unbiased comprehensive manner we'll be completing in our first article. The second article is on two aspects. The first one is on prison reforms and the second one is on the repealing of obsolete laws और ये जो issues हैं that is coming out of Prime Minister Narendra Modi during recent speech. So यहाँ पर इसके prison reforms को जानने की कोशिश करेंगे, prison reforms की importance को, उसकी current scenario को, उसमें क्या क्या challenges हैं, उसके historical provisions को, all those things we'll be looking in our second article. And as usual, the third one is on the quiz of the day. So let's start our first one that is on the aspect of collegium system. अब जैसे मैंने इनिशियली कहा ये जो collegium system में जो controversy है that has been there for quite a long time और जो recent mainstream media में कवर किया जा रहा है that is because of some personal comments जो कि किरण रिजिजू जी जो कि हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं उनके तरफ से आ रहे हैं. But as far as UPSC's preparation is concerned, as far as UPSC's perspective is concerned, इनके personal opinions या किसी भी judge के भी personal opinions is not something that we should be concerned about. So as far as UPSC is concerned, there is an unbiased technical aspect that we need to discuss and उन aspects को discuss करेंगे from our finer details. Now, since this topic has already been a very great controversial topic, and that is why we have already discussed this topic in great details in our 17 January video, जहां पर हमने start off किया था first of all कि कौन सा article है revolving the aspect of appointment of judges to the Supreme Court. Then उसमें हमने बात की कि उस आर्टिकल में क्या क्या इश्यूज हैं, उसमें लैंग्वेज में क्या क्या इश्यूज हैं, उन लैंग्वेज में जो भी इश्यूज हैं, जो क्लैरिटी की कमी है, उन क्लैरिटी को लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या केसेस में क्या क्या जजमेंट सुनाए थे, उससे कैसे आपका जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है वो शेप हुआ है. एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस कि जो करंट कॉलेजियम सिस्टम है उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, उसमें क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और कैसे हम उसे दूर कर सकते हैं. दैट आई डिस्कस इन आवर 17th January video. So please refer to it so that you have a very good unbiased and unilateral understanding of this topic. With that, now let's move to our next aspect, that is on the aspects of prison reforms. अब यहाँ पर prison reforms और repealing of obsolete laws के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने अपने recent speech में उन्होंने comment किया था and that is why this prison reforms becomes an interesting topic. Now ये जो prison reforms है similar to the collegiate system, it has been there for a quite a long time. In fact, independence से पहले से ही prison reforms के काफी सारे debates हो चुके हैं. But as far as UPSC is concerned, we should have a broader horizon of understanding, and that is why let's start from the basics. So first of all, प्री इंडिपेंडेंस में क्या क्या स्टेटस था और क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स थे और इंपॉर्टेंट कमिटीज थे वो देखते हैं विद रिगार्ड्स टू प्रिजन रिफॉर्म्स. सो इन 1935 एक मेजर डॉक्यूमेंट निकल के आया जिसे हम लोग कहते हैं मैकॉलेस मिनट. ये मैकॉले ने प्रोवाइड किया था एंड दिस डॉक्यूमेंट दिस डोसियर ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ द प्रिजन सिस्टम्स इन इंडिया. Thereafter, over the years, prisons में जो भी issues हो रहे थे उनको resolve करने के लिए काफी सारे committees form हुए थे. And one interesting committee was of the 1938 Prison Discipline Committee. अब ये कमेटी ने काफी सारे नीड्स थे प्रिजनर्स के, ह्यूमैनिटेरियन नीड्स थे. ये कमेटी ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि कोई भी ह्यूमैनिटेरियन रिलीव्स या ह्यूमैनिटेरियन नीड्स नहीं दिए जाएंगे प्रिजनर्स को. So that showed the balanced act of cruelty that the independence, pre-independence community had on prisoners. Thereafter, Prison Act of 1861 and 1894 already had formed the present jail management system. Then, in our 1919 to 1920, it was the first time जब इंडिया की colonial history में Indian Jail Committee reforms had been declared और पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे ओवरऑल करने के लिए काफी सारे कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशंस दिए गए थे. So after that, काफी सारे और मेन स्ट्रीम एक्ट्स, फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935
and various other acts, what they did is that they had brought various few changes to the aspects of prisons. For example, अगर 1935 एक्ट की बात करें, so 1935 एक्ट ने ट्रांसफर किया द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन्स फ्रॉम द सेंट्रल लिस्ट टू द स्टेट लिस्ट. सो इनिशियली ये यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करते थे, बट एज ऑफ नाउ इट इज इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड दैट इज व्हाई प्रिजन लॉज के और प्रिजन रिफॉर्म्स की बात करते हैं. सो द बिगेस्ट चैलेंज इसकी इट इज इन द स्टेट लिस्ट, और क्योंकि स्टेट लिस्ट में है सो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट लॉज उसे गवर्न करते हैं. सो द एस्पेक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज क्वाइट लो. अब देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडियन प्रिजन सिस्टम में. सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन इशू इज ऑफ ओवरक्राउडिंग. इंडिया में प्रिजन्स में भी ओवरक्राउडिंग हो रहा है. जब ओवरक्राउडिंग हो रहे हैं सो देयर आर अ लॉट ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, फैसिलिटी की कमी है, देयर इज दिस अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, कस्टोडियल डेथ्स के काफी सारे केसेस हैं. और एक इनफैक्ट अगर आप एनसीआरबी के 2020 डाटा उठा के देखें तो वहां पर 76% ऑफ ऑल प्रिजनर्स इन इंडिया आर अंडर ट्रायल. दैट मींस उन्हें क्रिमिनल्स घोषित नहीं किया गया है, दे आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रायल, बट उस प्रोसेस ऑफ ट्रायल में ही पहले ही उन्हें जेल्स में डाल दिया जाता है. अब ये वैसे जेल्स है जहां पर देयर इज अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, कस्टोडियल डेथ्स है, अनहाइजीनिक कंडीशंस है, एंड लैक ऑफ अदर इश्यूज आर देयर. सो इन सब कंडीशंस में जब आप ट्रायल पर्सन को ही डाल देते हो, आप जब पहले से ही उसे एज एन कल्प्रिट एक्ट करते हो, सो उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज काफी सारे होते हैं, सोसाइटी में उनमें काफी सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, और वो लेटेस्ट एज में अगर वो इनोसेंट घोषित हो भी जाते हैं तो उसे कवर अप करना उनके लिए काफी मुश्किल होता है. सो दैट इज द बिगेस्ट इशू विद इंडियन प्रिजन सिस्टम. At the same time, underfunding and understaffing is also there. Around 33% of the total requirements जो है prison officers के वो still vacant है इंडिया में. सेम टाइम पे जुडिशियल पेंडेंसी इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रिजन इश्यूज. क्यों? क्योंकि काफी सारे जो अंडर ट्रायल्स हैं वो इसीलिए काफी सालों तक जेल में रहते हैं क्योंकि उनके जो केसेस हैं वो पेंडिंग रहते हैं काफी सारे कोर्ट्स में, और क्योंकि पेंडिंग होता है दैट इज व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज. ये जो मशीनरी है स्लो चलती है, और मशीनरी स्लो चलती है, सो दी पीपल जिनको ये बर्डन फेस करना पड़ता है दैट आर दीज अंडर ट्रायल्स, जो कि काफी सारे केसेस में इनोसेंट पीपल होते हैं. द सेम टाइम काफी सारे लोगों को विदाउट देयर इंफॉर्मेशन, विदाउट मनी, उनके पास लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते हैं, उनके पास लीगल एड की फैसिलिटी नहीं होती है, प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं होता. सो दीज आर सम ऑफ द बिगेस्ट challenges with the Indian prison system. अब जैसे मैंने इनिशियली कहा, ये जो प्रिजन के जो इश्यूज हैं दैट हैज बीन देयर, दैट हैज बीन लिंगरिंग फॉर अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और इसीलिए काफी सारे कमिटीज ने ओवर द इयर्स काफी सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं, काफी सारे रिपोर्ट्स दिए हैं कि किस तरीके से प्रिजन्स को वो ओवरऑल कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे और इंप्रूव कर पाएंगे. And the most significant and the most recent one is the अमितावा रॉय कमेटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था पर्टिकुलरली फॉर रिफॉर्मिंग प्रिजन्स. अब देखते हैं कि उनकी रिपोर्ट में कौन से मेजर रिकमेंडेशंस दिए गए थे. सो द फर्स्ट एस्पेक्ट इज ऑफ ओवरक्राउडिंग. अब ओवरक्राउडिंग के लिए देयर वाज दिस रिकमेंडेशन कि हम स्पीडी ट्रायल्स करवा सकते हैं, स्पेशल कोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, एट द सेम टाइम लॉयर्स टू प्रिजनर्स की जो रेशियो है वो बढ़ा सकते हैं, सो दैट देयर इज एटलीस्ट वन लॉयर फॉर एवरी 30 प्रिजनर्स, ताकि उनके पास लीगल रिप्रेजेंटेशन मिले, लीगल एड मिले. एट द सेम टाइम ये जो एडजॉर्नमेंट्स हैं, एडजॉर्नमेंट्स हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, उसे हम लोग हटा सकते हैं, फॉर मिनिमल सेक हम उसे यूज कर सकते हैं, ताकि काफी सारे केसेस में बेकार के रीजंस के कारण, काफी सारे टेक्निकलिटीज के कारण हम लोग उसे एडजर्न करें तो डेट आफ्टर डेट उनके जो ट्रायल पीरियड है वो बढ़ती जाती है, और अंडर ट्रायल्स को वो फेस करना पड़ता है जेल पीरियड. और इसीलिए ही अगर एडजॉर्नमेंट हम लोग हटा दें, उसे हम लोग एटमोस्ट फॉर एन एक्सट्रीम कॉज हम लोग यूज करें, सो जो अंडर ट्रायल्स के जो नंबर्स हैं वो कम हो जाएंगे. अब बात करते हैं कि प्रिजनर्स के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स थे. द फर्स्ट वन इज द एकोमोडेटिव ट्रांजिशन. फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्री कॉल्स करने की बात की गई थी, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आके उनसे मिल सकते हैं वंस इन अ वीक, वो यूज कर सकते हैं वीडियो कॉल के फैसिलिटीज, वो यूज कर सकते हैं लीगल एड के फैसिलिटीज. एट द सेम टाइम काफी सारे अल्टरनेटिव्स भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि वहां पर हर एक कल्प्रिट को हम जेल ही करें. देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस जो कि पेटी थीव्स होते हैं, जो कि पेटी इश्यूज होते हैं, उस केसेस में हमें उन्हें जेल टर्म देने की जरूरत नहीं है. वी कैन fine them or we can have another sort of punishment जो कि वो fulfill करेंगे. So that is another aspect of this prison reform. अब देखते हैं कि वैकेंसीज फिल करने के लिए क्या 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 था.
तो वैकेंसीज फिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि हम हर एक अथॉरिटीज को डायरेक्ट कर रहे हैं कि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करें। दैट इज वाई अगर आप रिसेंट केसेस में देखें तो रिसेंटली काफी सारे अथॉरिटीज ने अपने अपने वेबसाइट्स में रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया है। सो दैट इज अगेन एन इफेक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट कमिटी इटसेल्फ। सेम टाइम 2017 में जो लॉ कमीशन है उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि जो अंडर ट्रायल्स हैं जो कि अराउंड अ थर्ड ऑफ देयर मैक्सिमम सेंटेंस, जो कि उनका काइंड ऑफ उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया था उसका थर्ड ऑफ मैक्सिमम सेंटेंस अगर वो काइंड ऑफ वो सफर कर चुके हैं जबकि अंडर ट्रायल्स है, नाउ दीज आर नॉट कल्प्रिट्स, ये अभी तक प्रूव नहीं हुए कि वो गिल्टी हैं, ये उस फेज में है जबकि जेल में वो सर्व रहे हैं टिल द जजमेंट कम्स इन। और उस केस में अगर वन थर्ड ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस वो ऑलरेडी अगर वो ले चुके हैं देन वी कैन हैव एन एस्पेक्ट ऑफ बेल, उन्हें हम बेल में छोड़ सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द टेक्निकलिटीज जो कि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट कमेटी एज वेल एज लॉ कमीशन ने ओवर द इयर्स दिए हैं। सो नाउ लेट्स सी कि कितने इसमें रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट होते हैं, कितने इंप्लीमेंट होते हैं। सो दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द गवर्नेंस। विद दैट, now let's move to our next aspect, that is on the aspect of quiz of the day. So the first question is regarding the e-court project, which is a very important project, whereas the second one is regarding the POXO Act. Now again, both these questions are important. They are based on current affairs और इन questions कुछ explanation है along with their PDF would be given to you in the form of an link which would be there in the video's description, as well as the PPT that we have done discussions on that also will be provided to you in the form of a link in the video description. So stay tuned for more content. Thank you. See you tomorrow.